सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभंग। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच। नानक होसी भी सच। तुझ आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा सतगुर मैं अरदासिया। गोला करो हजूर। गोला के पुल के करो गोलियां दी तू। दाता करो गोलियां दी तू। करो गोलियां दी तू। दाता करो गोलियां दी तू।
मेरे सुमार ज्ञान स्वामी तिरुवतना की नैया कोट परात हमारी मंडो तनिक समझा हम अज्ञान कल्प मत कोई हमें आपन निर्भर खाओ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा सजन सुने राखो राखनार दयाला नानक करके बोले कर बोलिया तू सतगुर मेरा कर बोलिया तू सतगुर मेरा तुम ही सज्जन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक करके गोले परम ते सत्कारियो सतगुरां दी साडी अरनवाड़ी सत संगत गुरुआं दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन पवित्र करना में जुड़ बैठ के
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਰਬਾਵੜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਧਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੋਕਲੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗਗਨਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਸੀ ਬੜਾ ਘੋਟ ਕੇ ਢੋਲਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਘੋਟ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੋੜੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਗੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਲੀਹ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿਲਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ,
जिन्हां ने आप सिमरन कीता है, जदों माइक ते बैठते ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों में बैठते हैं, जिवें आपां सारे बैठे हैं, तो आनंद ही वखरा है। उन्हां दी रसना तो जपिया होया सिमरन तो झटका मारदा। मेरे मालिक कहते ने जिन्हां ने सिमरन कीता, बंदगी कीती है, हर मन तन वसिया सोई, मन तन करके कहते विच वसा लिया। मां कहती वाहिगुरू, बच्चे ने भी वाहिगुरू कह दिता। मां मूल मंत्र का जाप कर दिया, बच्चा भी करता है। अज बच्चा है, अवस्था बन जानी है, सारी दुनिया ने उत्ते ते ओदी जय जयकार हो जानी है। हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। छोटे साहिबजादियां नूं दादी मां दी गोद दा निग मिलिया। आप की इतिहास जानते, जिन्हां नूं मां दी गोद दा निग मिल गया, मां दा कीता होया जप तप सिमरन, वो बच्चे दी गोद विच पै जांदा वो सतनाम। हुण झाती आपां अपने मन अंदर मारनी है। मेरियां भैणां मातावां बैठियां, कईयां ने बच्चों को जन्म दे दिता, कईयां ने देना, कईयां की कुल तुरपी, कईयां ने तोड़नी। ये नहीं कि एक कन विच पाया दूजे एक कन विच कढ़ दिता। जे हम सत्संग करन आउंदे हो, तेल मचाउने हो, दूरों दूरों आउंदे हो, इत्थे दा जो भी सतगुरु जी विचार करते हैं हिरदे विच वसाया करो। जिन्हां ने हिरदे विच विचार वसा ली, उन्हां दा जीवन बन गया। ये दर ऐसा है, टुटे हुए नूं जोड़दा। साडी मत होवे असीं टुटे हुए जुड़ जांदे, जुड़े हुए टुट जांदे। सतगुरु जी कृपा करते ने, रहमत करते ने, बख्शिश करते ने। मैं ताही बच्चियां नूं बेनती करदा हुंदा है, गा अंस वंस तोरनी है ना, अमृत वेले उठ के जरूर बाणी का जाप करिया करो।
पहला इशनान करो, कुछ समा मूल मंत्र या गुर मंत्र जपजी साहिब का पाठ सुखमनी साहिब का पाठ जरूर करो, क्योंकि जो असीं देखते हाँ उहदा भी असर साडे ते पैंदा, सुनदे हाँ उहदा भी असर पैंदा, छकदे हाँ उहदा भी असर पैंदा। ते साध संगत जी इसे तरह जो देखते हैं वो साडे आने वाले बच्चे ते असर पै रहा, सुनदे उहदा असर पै रहा, ते साध संगत जो अतिकार करदे उहदा असर पै गया। ते जे हुण देखदियां दा असर पैंदा, जो जिहा असीं देखांगे फिर वो जिहा असर पैना है। भागां वालियां बच्चियां ने, मेरियां भैणां मतावां ने, जिहड़ियां गुरु दे दर्शन करदियां ने। एक होंदा अखां खोल के दर्शन करना, हुण जिहदी निगाह नहीं उदों ਇਹਦਾ मतलब है दर्शनां तो वांझा नहीं। साध संगत एक नेत्र खोल के दर्शन करने, एक अंतर्मुख दर्शन होंदे ने। हुण कई बार आपां देखते हैं बच्चा साडा बाहर गया, बच्ची साडी बाहर विदेश विच बैठी है, हज़ारां मील दूर बैठी है। चलो हुण आ मोबाइल चल पे, वीडियो कॉल चल पई, उह ते तुहानूं देख पैंदे आ, पर साध संगत जी ये असीं नेत्रां नाल देखदे आ। जदों बैठ के बच्चे नूं हिरदे तो याद करना ना, याद करना, वो नेत्रां दे सामने आ जाता है। वो नेत्र बनते भी जिन्हां दी निगाह नहीं उन्हां नूं भी दर्शन होंदे ने। सो इस करके अज घर विच बैठी आ, निगाह नहीं है। जदों निगाह सी उदों तो दर्शन कीते है ना, उदों तो सचखंड श्री हजूर साहिब गया, पटना साहिब गया, तख्तां ते गया, श्री हरमंदिर साहिब गया, या गुरस्थान ते गया, या गुरुद्वारे जाना रोज। नेत्र जदों दर्शन तेरी निगाह से दर्शन कीते हैं ना, अज तेरी निगाह चली गई, निगाह बंद हो गई, शरीर तो तंदुरुस्त है ना। तू अंतर्मुख सिमरन कर, बंदगी कर। जो बंदगी करके ध्यान धरेगा ते साध संगत जी ध्यान धरदे सारी साडी सुरत जिहड़ी उत्थे महाराज कहते हैं तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक। महाराज तुम दाता है, तू सारे संसार की पालना करने वाला नायक, कसम मारे सारे संसार की तू पालना करता है। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो अंबारक, तुमरे अज तक तुहाडे बच्चे निमक निमक मात्र तुहाडा साडे ते ध्यान। जेवा एक कवन गुण कही है, तुहाडी शोभा किन्नी है, महिमा किन्नी है, साडी जेवा एक है। जेवा एक कवन गुण कही है, जे एक जेब दे नाल तुहाडे असीं गुण गाउण लग जाईए ना, बेसुमार बेअंत सुआमी तेरा अंत ना किन्नी लई है। गुण गाई चल, पर यह ना कही कि महाराज अंत ले लिया, किन्ने मरदी जन्म ले ली, पर ਉਹਦਾ अंत नहीं कोई पा सकिया। बोलो सतनाम। अंत पाउण वालियां दा ਉਹਦਾ ही अंत पै गया। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक भी नहीं समझावो। ਆਪਾਂ मां प्यो ਨੂੰ कहने हैं ये साडे माता पिता ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, महाराज जी असी पता नहीं किन्ने करोड़ा अपराध कीते, तुसी आप कृपा करो, अनक बुद्धि समझाओ, तुसी कोई विध दे दियो, तुहाडे कोल जुक्तियां ने, सानू समझा दियो। हम अज्ञान अलप मत होरी, तुम आपन विरध तुहाडे असी तुहाडे दर ते आए हैं, तुसी विरध वालियां दी लाज रखदे हो, अज्ञानी है, सानू कोई मत नहीं है। साध संगत सतगुरु कृपा कर दे। अवधारणा पढ़ के समाप्ति करिए। दाता मत दे के समझा दो, आप जी कृपा करो, सानू ऐसी मत दे के समझा दे, क्योंकि तो तुहाडे बच्चे हैं, बालक न्याणे हैं, बालक न्याणे
गावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखण हार दे अल्लाह, नानक करके हाँ ते आओ साथ संगत। धन गुरु नानक पातशाह जी के इस दरबार में आप गोले बन के गए। ये तो उच्ची अवस्था श्री गुरु बाबा जी समत दिया करते सन। भाई गुरदास जी कहते किवें आया, कहते जी मैंने अपने दर का गोला बना, कहते सीधा ही गोला। फिर उन्होंने क्या कहते सतगुर मैं अरदासिया गोला करो हजूर, गोला किया पर कि करो गोलियां भी दूर। सात संगत जाना संसार में कुछ समझना नहीं है, नेकी करके कुछ करके। मैनू जसवाल तो बापू जी आते हैं पिछे आए, अज मैनू कहते तुहानू याद है मैं तुहानू कुछ किया, मैं कहा हाँ जी महाराज याद है, अजे थोड़ा तुहानू तोरना सी। कहते जो मैं तुर गया कि तुसीं करना, मैं कहा मैं धक्के ना भी जाके करूँ तोड़ा ना, पर तेनों अजे तोरना नहीं असीं। ऐसा गुरु क्या नहीं तेनों तोरना, ऐसा संसार के सब कुछ पता नहीं, रंग तमाशे किन्ने कुमारे ने दिखाने ने। क्योंकि बजुर्गों का मैं कई बार विचार करता हूँ ना, बजुर्गों का साथ संग भी आसरा ही बहुत है। दिखता ना होवे, सुनता ना होवे, तुरना आउंदा होवे, ते शास्त्र बैठे तो ही आसरा हुंदा है। जे बजुर्ग घर विच बैठे ने ते साडियां साथ संग दी गमियां भी खुशी बन जांदियां ने। जे बजुर्ग विच घर विच नहीं ना हैगे ते खुशियां भी गमी विच आ जांदियां। आप जी ने पिछली पूर्णमासी साहब विचार सरवण कीते हैं, बजुर्ग घर विच बैठे आ ते शास्त्र जिथे मर्जी चले जाइए, जिन्ना मर्जी ने राज में बापू जी बैठे, पर एक चेता होंदी है। पर वो भी आप जान लगे बापू जी या बेबे जी आ प्रसादा पिया वा, आ जल पिया वा, छक लियो, आ सकंजी पई आ, चाह बनी पई है, तरमूज पा के रख लो, उन्हें टाइम पर आप छक लें। जे बुजुर्ग घर विच नहीं है तो खुशी किवें गमी बनती है। तुम पैलेस पे चले गए या ब्याह शादी से चले गए या किसी भोग से चले, उन्होंने कहता 10 बजे या 11 बजे 12 बजे शगन पै जाना। हम तुहानूं पता अजकल के 12-4 बजे बजते हैं। हुण तुहाडे घरे बजुर्ग है, तुहानूं कवेड़ा हुंदा है। फिर जिहड़ी खुशी में गए हो ना, या तक खुशी रुस के आओगे तो वो रुस जूगा, वो खुशी जिहड़ी वो गमी होगी। क्यों? घरे बजुर्ग नहीं है। इस करके लोड़ है माता पिता को संभाल लो, माता पिता की सेवा कर लो। जो माता पिता के कहने में चलिए, आखे लगी अपनी मत न वरतीए, संसार में तुहाडे कोल कोई आंच नहीं ला सकता। आ किसान अंदोलन चलिया चल रहा, चलना है, कोई ऐसी गल नहीं। महाराज जी कृपा करन, चलो सियासत चलती रहनियां ने। हुण बड़ियां अफवाह उड़दियां ने, तां जी तो चकते जी उत्ते घर नूं पाउण लग गए, तां आए होण लग गए, ये तां अफवाह होंदियां। हुण जे साध संगत जी उत्थों दे जथेबंदियां दा कहना मन लैंदे, जिहड़ी रूट आपां नूं मिलिया वो मन लैंदे ना, लोग किसे पासे जांदे, सारे आल दुआले चढ़दी कला हो जानी सी। एक ना मनण करके, बजुर्गों का कहना ना मनण करके, जिहड़ी जय जयकार वो तो चलो होनी होनी है, पर कलंक तो लग गया। लाउण वाले चाहे वही ने, कुछ भी है, पर जिहड़े साडे उत्ते बजुर्ग बैठे ने, साडे मावां बैठियां ने, साडे साध संगत जी एक रोल वो दसदा सी, कहंदा जदों दा मैं 26 नवंबर का इत्थे आया, मैं घर ही नहीं गया, मैं कई ब्याह छड्डते, मैं कई गमी के भोग छड्डते, मेरी मां दे सट्टां वजियां ते टांके लगे, मैं वो भी छड्डते, हुण मेरी मां भी इत्थे आई हुई है। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ जीवन काल में कदे आंच नहीं लगती। साथ संगत सो इस करके माता पिता बजुर्गों का सत्कार करना, प्यार करना, सेवा करनी, अथाह सेवा करनी, ये ड्यूटियां होंदियां ने। और साथ संगत घर में सी 3 भरा सी, ते मैनूं इधरले पासे कढ़ता, 2 भरा माता पिता की सेवा में ला दिते। ये गुरु की कृपा होंदी है। जदों दा इधर आए देखे नहीं पिछे मुड़ के, बाबा जी के बचन हुण भी जेडे पिछे भी कारदे होया, हुण भी होना,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੇ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਾਇਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢੂ ਬੈਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੀ, ਦੋ ਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸਵੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ।
मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा धन। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा रोम रोम करके शुकराना। आप जी ने कृपा की, दूरों नेड़ों आप जी चल के आए हो। आप जनो निक गोद दा निक बख्शिया। जितने भी माई भाई चल के सबना दे चरणों से सीस रख के सबना का शुकराना है। ये आप जी का ही स्थान है। जो भी समागम होंगे ने वध तो वध करके आप जी तन करके मन करके तन करके सेवा सा पाओ, सेवा करो ताकि लोग के प्रलोक में ਆਪਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ। आओ सत्संग ਦੀ ਅਰਦਾਸ करके फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ने प्रसादा पानी जिन्हें छक लिया खुशियां, नहीं छकिया तो सबना ने छक के जाना। सत श्री अकाल पुरख जी का